Hi everyone, I am Praveen Sagar. I welcome you on my channel. In this video, I am going to tell you the most important role of communication in the life of every student. That why the communication classes are very important for all the students. Now let me give you some examples. When the program of 15 August, 26 January or any cultural program are going to be held in a school, then you must have observed one thing many times, that most of the students get ready for singing, dancing, and most of the students get ready for playing a drama before the audience. But my dear students, when it comes to speak, when it comes to deliver a speech before the audience, I think most of the students get afraid of speaking. Most of the students get hesitated that how to speak before the public and what to speak. First of all, they do not get ready for delivering a speech. We have to convince them that you can speak, you should speak, you should be confident. Reason being, why most of the students are not able to speak before the public? Reason that no communication class is being given in the most of the schools. What happens, I am a teacher, that's why I know this thing, that most what happens, that in every school student know down everything. They are in the habit of writing everything. They know how to write perfectly, but when it comes to speak, they are not able to speak. They cannot present themselves. Whatever is written in their notebooks, they cannot tell it in the words, in the language. Reason being that some of the schools, not some, I am telling you frankly, that most of the schools are not being given the training of communicating. And for your kind information, let me tell you one thing. When a student qualify a written examination for government jobs, my dear, after the written examination there will be an interview. Have you ever observed that why the interviews are being held after qualifying the written examinations? Reason, the interview is most important. The selection of a student depends on the interview. In an interview, the interviewer wants to see his posture, his gesture, body language, eye contact and voice quality. In an interview, the interviewer checks the skills of listening, that his listening power is active or not. Sometimes it does happen that I am very good at writing, but my listening skills is weak. So in an interview, listening skills is checked by the interviewers. That's why interviews are held, my dear. So this is my message for all the members who are running their schools. Please give a proper training to all the students of communicating. There must be a proper training how to talk in every school. What happens in a school, students make habit of writing everything, and when they grow up, they spend extra money. Now they learn how to talk, how to communicate. Getting? So this training must be given in every school since childhood. Now I am telling the negative points of noting down each and everything. What happens when a person writes each and everything? After noting down, after writing the things which you are going to do in your future, as soon as a person writes and closes the notebooks, you have seen many times that after writing, our mind starts becoming inactive. क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि यह चीज़ मैंने नोट कर ली है और इसको काम पड़ने पर मैं इसको देख लूँगा, और काम पड़ता नहीं, हम उसको देखते नहीं हैं. Now let me give you
some negative points of writing each and everything. What happens, जब कोई भी व्यक्ति एक छोटी से छोटी चीज को भी नोट डाउन करता है, और आपने कई बार ख्याल किया होगा, अगर नहीं किया हुआ तो इस बार करना, कि अगर हम कोई भी चीज नोट डाउन करते हैं माय डियर, तो जैसे हमने किसी भी सूचना को या किसी भी बात को रिटन किया, तो देखना हमारा जो दिमाग है वो रेस्ट की अवस्था में आ जाता है। यानी कि इससे पहले हमारा दिमाग एक्टिव था, अब धीरे धीरे क्या है वो इनएक्टिव, यानी कि आराम करने लगता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। क्या होता है, जब हम पूरे एक महीने का सामान की लिस्ट बनाते हैं मार्केट से लाने के लिए, कि भाई घर का सामान लाते हैं खाने पीने का, तो आपने देखा होगा कि घर का हर मेंबर उस पूरे सामान की एक लिस्ट बनाता है, उसमें पूरा सामान लिखता है, 2 किलो चावल, 1 किलो तेल, टमाटर, धनिया, वो हर आइटम की एक लिस्ट बनाता है और उस पर्ची को जेब में डाल के ले जाता है। आप सच बताना, जैसे ही आपने इन सारे सामान की लिस्ट बनाई, उनको लिखा, तो आपको नहीं लगता कि आपके दिमाग पर कोई भी जोर नहीं उस वक्त? आपका दिमाग आराम कर रहा है, रेस्ट की अवस्था में है। गेटिंग? इसकी आप ऑपोजिट करना इस बार, कि आपको अगर कोई भी सामान लाना हो तो आप लिखना मत, आप घर पर आप उसको 2-3 बार बोलना उसको। गॉट इट? और आप बिना लिखे आप मार्केट जाना। मुझे सच बताना कि आपका जो दिमाग है इस वक्त एक्टिव रहेगा या फिर उस वक्त एक्टिव था जिस वक्त आपने हर सामान की लिस्ट बनाकर पेपर को अपनी जेब में डाला था। आपका दिमाग एक्टिव रहेगा घर से लेकर दुकान तक पूरे रास्ते, जब आप कुछ भी लिखकर नहीं ले जाओगे। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम सिर्फ बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लिखने पर जोर देंगे, तो बच्चे का जो दिमाग है ना माय डियर, वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। बच्चे के दिमाग में रहता है कि आई हैव रिटन, आई हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग, नो आई विल लुक इट लेटर। और बच्चे में इतना सेंस नहीं होता कि उसको वो समय से देख सके। जब तक उसको काम नहीं होगा वो देखेगा नहीं किताब को खोल के। अगर मैं आपको पास्ट में लेके चलूं, तो आपने पहले देखा हुआ जो ऋषि मुनि अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, लिखना आता नहीं था, लिखने का साधन नहीं था, तो हर चीज जो गुरु होता था अपने शिष्यों को जो भी वो सिखाता था, जो भी शिक्षा देता था, वो स्पोकन में हुआ करती थी। लिखने का काम नहीं था। गुरु आया, उन्होंने बोलना शुरू किया और शिष्यों ने उसको दोहराना शुरू करा। दोनों तरफ से बोलना हो रहा है, गुरु बोल रहा है, शिष्य सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं ध्यान से, इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो अगर जितना वो ध्यान से सुनेंगे वो उतना ही याद रख पाएंगे। तो जब गुरु बोलता था तो बच्चे जो ध्यान से सुनते थे, पूरा ही ध्यान उसका सुनने पर रहता था, क्योंकि नेक्स्ट डे गुरु जो आज जो सिखा रहा है वो सुनेगा। और सीखने वाले को ये साफ साफ मालूम था कि मेरे पास लिखने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है, तो उसका क्या है, दिमाग एक्टिव रहता था हमेशा। और जब एक्टिव रहता था तो बच्चे भी इंटेलिजेंट हुआ करते थे, विवेकशील हुआ करते थे। आजकल क्या हो रहा है कि हम हर चीज नोट करवा रहे हैं। आपने देखा हुआ कि अगर कोई भी एक टीचर जो है बोलकर अगर 50 चीज बता दे बच्चों को, तो उनके मन में यह आता है कि आज मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, आज इस टीचर ने मेरे को कुछ भी नहीं पढ़ाया। हालांकि वो बोलकर बहुत काम की चीज बता रहा है, लेकिन बच्चों को इतनी बुरी आदत डाल दी गई है कि जब तक उनको 10-15 पेज न भरवाऊं, तो उनके मन में यह रहता है कि आज टीचर के द्वारा और क्लासरूम में मेरे को कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। आप क्लास में जाते बच्चों को 10 पेज लिखवा दो और 10 पेज ही आप उनको होमवर्क लिए दे दो, तो बच्चे के दिमाग में आएगा माय गॉड बहुत पढ़ाई हो रही है स्कूल्स में, चाहे उसको समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या लिखा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि लिखने के साथ साथ माय डियर हर स्कूल्स और हर कॉलेजेस में एक कम्युनिकेशन का भी ट्रेनर होना चाहिए। आप बच्चों को बोलने की ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं आप अपने स्कूल्स में? आपने देखा बच्चे अपना परिचय नहीं बता पा रहे, अंग्रेजी तो छोड़ो, वो हिंदी नहीं बोल पा रहे, अपने मन की बात नहीं बता पा रहे। पर इसी वजह से जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट फेल इन द इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। आपने कभी सोचा कि इंटरव्यू क्यों होते हैं हमारे? जब आप किसी भी गवर्नमेंट
जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं and you qualify the written examinations, and after qualifying the written examinations, why the government wants to take your interview? Because the government has checked your knowledge, you have knowledge, you are qualifying the written examinations, and after the written examinations, why the government takes your interview? Interview means साक्षात्कार, फेस टू फेस। इंटरव्यू इसलिए होता है माय डियर, क्योंकि वो देखना चाहता है कि इस व्यक्ति की लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। लिखने में तो अच्छा, दैट्स ओके, क्योंकि आगे चलकर ये काम करेगा तो ये लिखेगा नहीं हर चीज़, इसको बोलना पड़ेगा। तो इसकी जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे शब्दों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, इसकी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, इसकी स्पीकिंग कितनी अच्छी है, ये किस तरीके से बात को प्रेजेंट कर पाता है, समझकर मेरी बात को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, समझ पा रहा है तो लेकिन बोल पा रहा है या नहीं, अपनी बात को प्रेजेंटेशन अच्छी है या नहीं, इस चीज़ को जज करने के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं। बच्चे का बैठने का ढंग कैसा है, ये ड्रेसअप कैसी है, इसकी हेयर स्टाइल कैसा है, इसका आई कांटेक्ट कैसा है, इसकी वॉइस क्वालिटीज़ कैसी है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए इंटरव्यू होता है। और इन चीज़ों पर स्कूल्स में ध्यान दिया नहीं जाता। वहाँ तो कोर्स पूरा हो जाए बस इतना काफ़ी है, किताबें भरवाते चले जाओ बस, बच्चे का व्यक्तित्व विकास नहीं हो रहा है इन द स्कूल्स। फिर क्या होता है, जब एक बच्चा स्कूलिंग करके जाता है, फिर इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए वो एक्स्ट्रा मनी पे करता है। फिर वो सीखता है कि ऐसे बैठे हैं, आपको ऐसे दरवाजा ओपन करना है, इंटरव्यू कितने तरह के होते हैं, इंटरव्यू कैसे फेस करें हम, मेरी फाइल कैसी होनी चाहिए, मुझे कैसे सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए। अगर यही बात बच्चों को हर स्कूल में सिखाना शुरू किया जाए तो बच्चा तो बहुत अच्छे से सीख जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दैट एवरी स्कूल और कॉलेजेस मस्ट बी गिवन द ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। Is that clear, my dear? Because after getting a job, that student has to speak, has to present himself. So today in this video we learned the role of communicating in the life of a student. So thanks for watching.